Ya Ali Madad. Alwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 332. دل بھاوے جیوڑا تو جاگ اللہ را تو جاگ میرے اللہ تو دن آوے جی سلوات پڑھو آج میں یہ گنان آپ کے سامنے ترجمہ کرتا ہوں. کچھ مدت سے میں نے یہ شروع کی ہے کہ ہر جگہ جہاں تک بن سکے گنانوں کے ٹرانسلیشن سمجھوتی جماعت کو سمجھائی جائے. ایک دن میں ایسوسی ایشن کی آفس میں بیٹھا خداوند کے فرمان پڑھ رہا تھا. اس میں یہ فرمان گنانوں کے متعلق کہ بھوش کی تمہاری اولاد کے لیے تم سوچو کہ گنانوں جیسی اعلیٰ اتم پرنالی کا سنبھال کے رکھو، کیونکہ اگر تم یہ نہیں سنبھالو گے تو تمہاری بھوش کی اولاد کو نقصان ہوگا. مجھے یہ خیال ہوا کہ گنانوں کا ترجمہ لکھ کے اس کی ہم پرنٹنگ کرائیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ وہ بھی ہوگا، لیکن جماعتوں کے اندر گنانوں کے اوپر اگر سمجھوتی ترجمے کے ساتھ کی جائے تو وہ واز کی واز بھی ہوتی ہے، گنانوں کی سمجھ بھی آتی ہے. گنانوں کے اوپر سے ہی تو واز ہوتی ہے. اگر امام کے فرمانوں میں سے ہی واز ملتی ہے تو گنان اور فرمان ساتھ ساتھ ہو جاتے ہیں، دونوں کام ہوتے ہیں. یہ پھر صدر الدین ماں باپ کا چھوٹا سا گنان ہے، اور یہ چھوٹا سا گنان دوسرے سب گنانوں کی طرح بڑا میٹھا اور امپورٹنٹ ہے. ہمارے بچے اسکول کے اندر یہ گنان سیکھتے ہیں، گنان چھوٹا ہوئے بڑا ہوئے. ہم اپنے پیر ماں باپ حضرت امام کے سب بچے ہیں، اس کے سامنے ہمارا حال بچوں سے بھی کم ہے. اس طرح ہم کو پیروں نے نصیحت کی جیسے ایک ماویسر بچوں کو نصیحت کرتا ہے. کبھی کبھی تو ایسے گنان ہیں کہ جو گرون اپ بچے ہوتے ہیں سمجھدار بن جاتے ہیں، ان کو اشاروں میں باتیں سمجھائی جاتی ہیں. ایسے بہت سے گنان ہیں جن کے اندر اشاروں سے باتیں سمجھائی گئی ہیں. کئی ایسے گنان بھی ہیں جس میں دھکا دیا گیا ہے، غصہ کیا گیا ہے. ماں بچر بگڑ جاوے تو تھوڑا غصہ بھی کرے، گالیاں بھی دے. اور ایسے گنان بھی ہیں کہ جس کے اندر گالیاں بھی دی ہیں، میٹھی گالیاں. باپ غصہ کرے تو کیا بولے؟ بدھو، گدھا، بیوقوف. ایسی ہی بدھو اور بیوقوف جیسی گالیاں ہم کو بھی دی ہیں. اس کے اندر محبت اور پریت ہے. ایسے گنان بھی ہیں کہ جن کے اندر بہت اونچی فلسفی کی باتیں ہیں کہ جو تھوڑے ہی لوگ سمجھ سکتے ہیں، اور سمجھنے کے بعد اس کو ہضم کرنے کی شکتی بھی بہت تھوڑوں کے ساتھ ہوتی ہے. تو گنان ہر ایک انسان کو لاگو پڑے ایسے ہیں. دنیا کی دین کی در ایک بابت کے اندر ہم کو گنان دورونی دیتے ہیں. ہمارے جیون کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر ہمیں گنان سے دورونی ملتی ہے، راحت ملتی ہے. انشاءاللہ آپ یہ گنانوں کے ترجمے اور سمجھوتی سنو گے، آپ کو اس میں سے بہت سی چیزیں ملیں گی. یہ جو گنان چھوٹا سا 4-5 کا مولا کی محبت اور مولا کے اوپر ہمارا سارا کمپلیٹ آدھار ہے، یہ چیز ظاہر کرنے کے لیے پھر صدر دین نے پریم میں آ کے
इमाम का वखान और तारीफ की शुरू इस तरह से करते हैं कि घर सर्वधाइयों शाह मोरे लिया अवतार। ये पुरानी भाषा का शब्द है घर सर। उसका आजकल अर्थ क्या होता है? घर घर, यानी हर एक घर के अंदर, व्यक्तिगत घर में इस बात की मुबारक है और बधाई है कि मौला ने दुनिया के अंदर अवतार लिया, यानी अल्लाह का जो नूर है वो इंसान के रूप में इस दुनिया में आया। सबसे पहले फिर सदरुद्दीन महबूब फरमाया, मैं तुम्हें ये बधाई देता हूँ कि दुनिया के अंदर इंसानी जामे में मौला बैठा है। 184 शाह तू जीवे जो दाता है मेरे मौला, घर घर इस बात की बधाई और मुबारक है कि तू हमारे अंदर, ये रब है, भूख लगती है ये रब है। रब का लफ्ज बहुत बड़ा है। बिल्कुल इसी तरह से दातार का जो लफ्ज है वो भी बहुत बड़ा है। दातार रब के साथ मिलता जुलता शब्द है। खाना देने वाला, बाल बच्चे देने वाला, सुख देने वाला, तंदुरुस्ती देने वाला, बिजनेस रोजगार देने वाला, मकान देने वाला, बिल्कुल इसी तरह से मन की राहत देने वाला, इबादत बंदगी कराने वाला और हमको मुक्ति देने वाला, ये सब चीजें रब में आ जाती हैं, दातार में भी आती है। 184 जीवों को पालने वाला, 184 जीवों का ध्यान रखने वाला, 184 जीवों को इस दुनिया की मुसीबतों मुश्किलों में से निकाल के उनको ठौर ठिकाने करने वाला। 184 के अंदर आदमी भी आ गए, जानवर भी आ गए, पंछी भी आ गए, इंसेक्ट कीड़े मकोड़े ये भी आ गए, वनस्पति भी आ गई, पानी और हवा के सब किस्म के जानवर वो आ गए उसमें। फिर ने कैसे कैसे कमाल किए हैं। कविता है ये, और कविता यानी पोइट्री के अंदर ये गुण होता है कि प्रोज के पेजेस लिख डालो, वो सारी की सारी सेंस पोइट्री की एक वर्ष में आ जाती है। बिल्कुल इसी तरह से पीरों ने जो गिनानों को पोइट्री की शक्ल में जो निभाया, तो ये कि उसके अंदर थोड़े शब्दों में मतलब बहुत निकलते हैं। सारा जहान, पशु पंछी कीड़े मकोड़े वनस्पति लेन देन सब कुछ, इतने बहुत लंबी डिटेल्स लिखने बैठते थे सदरुद्दीन, उन सब का एक शब्द बना दिया 184। क्योंकि 84 लाख के अंदर एवोल्यूशन की जो थियरी है कि भाई इंसान इस दुनिया में किस तरह से पैदा हुआ, किस तरह इंसान की क्रिएशन हुई। हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि मौलाना रूमी ये बात सोचा करता था, मैं भला इंसान कैसे बना। खुदा ने बनाया ठीक है, लेकिन खुदा जो कुछ भी बनाता है उसका कोई सिस्टम होता है। सिस्टम बगैर कोई चीज खुदा नहीं बनाता। खुदा ने हर चीज को ऑर्गेनाइज किया, हर चीज का सिस्टम बनाया, मेथड बनाया। तो खुदा ताला ने मुझे कौन से सोर्स या मेथड में से निकाल के इंसान बनाया? तो मौला फरमाया, सोचते सोचते उसको ऐसा ख्याल हुआ कि मैं वांदरे में से आया। क्योंकि इंसान का नजदीकी रिश्तेदार शक्ल आदत वगैरह के अंदर लंगूर बंदर हैं। 32,000 किस्म के बंदर हैं, 32,000 जाते हैं, जिसको इंग्लिश में स्पेसीज कहते हैं। एक एक स्पेसी के अंदर लाखों करोड़ों होंगे, लेकिन 32,000 किस्म के बांदरे हैं दुनिया के अंदर। उनमें से तो अभी बहुत सी ऐसी स्पेसीज है कि जो बिल्कुल मिट चुके हैं और हमें पता नहीं, सिर्फ साइंस उनके ढांचे वगैरह निकाल के कल्पना करके उसकी शक्ल बना लेते हैं। 32,000 किस्म के बांदरे, इंसानों की कितनी जाते हैं। तो मौलाना रूम सोचते सोचते यहाँ आए कि भाई मैं वांदरे में से उत्पन्न होके, इवॉल्व होके मैं इंसान बना। भला वांदरे में से मैं इंसान बना तो मैं वांदरा कहाँ से आया? तो दूसरे जानवरों तक गया, यानी पीछे गया। कभी कभी एक इंसान कोई बात करते करते भूल जाए तो आप थ्रेड पिकअप करो। अभी क्या सोच रहे हो, इसके पहले मैं क्या सोच रहा था, उसके पहले क्या सोच रहा था, उसके पहले क्या सोच रहा था। आप जो कभी ये थ्रेड पिकअप करोगे तो वहां तक पहुंच जाओगे। ये सोचने का एक तरीका है, ये भी एक सोचने का तरीका है। हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते हैं कि तुम एक हाथ में बैठा करो, बैठा करो। हर रोज नहीं तुमसे बनता तो अठवाडिये में एक दिन तो जरूर बैठो। मौला फरमाया कभी 8 दिन में भी एक दफा नहीं बन सकता तो महीने में तो एक दफा जरूर बैठो। सोचो मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, किस हालत में मेरा जन्म हुआ, आज मेरी हालत क्या है, मुझे एक दिन मरना है, मैं कहाँ जाऊंगा। भला खुदा कौन है, खुदा कहाँ है। जामनगर और मंजेवड़ी के और वडवान कैंप के जो फरमान हैं, इन 3 जगहों के फरमान जो कि जंगबार के फरमान भी मौला की पहली मुसाफरी के कम नहीं। लेकिन आध्यात्मिक बाबतों के अंदर मन के अंदर वैराग उत्पन्न होवे, इंसान को इस बात की समझ सूझ आवे
कि रूहानी साइड भी मेरे जीवन की कोई इंपॉर्टेंट चीज है। खाली खा पी के सो रहना, मौला फरमाया तो जानवर भी करते हैं, बाल बच्चे जानवर के भी हैं, रोजी रोजगार ढूंढने के लिए जानवर भी निकलते हैं। तुमने कौन सा बड़ा तीर मारा, कौन सा बड़ा काम किया? कभी तुम दुनिया के अंदर खा पी के सो रहे, तो सफर में तो जानवर भी करते हैं। इंसान को सोचना चाहिए। ए जी कहो रे जीवत में किस कारण आया जी, कहो। वही इमाम सुल्तान मोहम्मद फरमाते हैं कि सदर बिंदी हमको यही सिखाते हैं कि तुम सोचो दुनिया में क्यों आए हो। ना कीजिए साहिब जीनी सेवाजी, दुनिया में फोकट आए हो, खुदा की इबादत न की। इंसान को ये सोचना चाहिए। मौलाना रूमी ये सोचते थे और सोचते सोचते यहाँ तक आए कि मैं पहले पत्थर था, पत्थर में से मैं वनस्पति में आया, वेजिटेशन में, वेजिटेशन में से मैं जीव जंतु में आया, यानी कीड़े मकोड़े, जिसको हम इंसेक्ट कहते हैं, बैक्टीरिया कहते हैं, एमीबा कहते हैं। इस तरह से चलते चलते जानवरों में से पसार होके मैं आज इंसान बना हूं और अब मुझे फरिश्ता बनना है। ये 184 है। हम इंसान हैं, 184 में से निकले नहीं अभी तक। 184 एक सर्कल है। गरबा खेलते वक्त, डांडिया रास खेलते वक्त, या और इस किस्म के डांसेस हैं कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम सर्कल बनाते हैं और हाथों से एक दूसरे की लिंक बनाते हैं। इसके अंदर कोई छोटा होवे, कोई बड़ा होवे, कोई उधर होवे, कोई इधर होवे, ये एक सर्कल में है। 184 भी एक सर्कल है। पत्थर, वनस्पति, कीड़े मकोड़े, जानवर में से निकल के इंसान तक आया, ये एक साइकिल है, ये एक चक्कर है, एक सर्कल है। हम भी उस सर्कल में अभी तक हैं। इसमें से छूटने का एक रास्ता हमको मिलना चाहिए कि ये जो चक्कर चल रहा है इसमें से हम निकल जाए। इसमें से निकल गए तो उसकी मुक्ति हो गई, वो आदमी फ्री हो गया। हम 184 में से अभी तक निकले नहीं। वापस कभी हम इंसान ही बनेंगे तो भी 184 ही आएंगे। 184 का ये मतलब नहीं कि हम ऊंदर बन जाएंगे या बिलाड़ी बन जाएंगे या कुतरा बन जाएंगे। इतने डिग्रेड तो नहीं करेगा मौला हमें। स्वभाव के हिसाब से डिग्रेड हो जाते हैं। शरीर कदा कुतरे का न मिला, बिलाड़े का न मिला, हम इंसान ही के इंसान रहे। लेकिन इंसानों के अंदर भी तो बहुत से जानवर हैं, शक्ल से नहीं सही, स्वभाव से। हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई जानवर की वृत्ति ज्यादा प्रमाण में है। और मात्र दुनिया के जितने भी इंसान हैं, हर इंसान के अंदर 5%, 1.5%, 2% जितना पागलपन है, मैडनेस इसको कहते हैं। और ये मैडनेस के कारण से हमको क्रोध और गुस्सा आता है। जब भी ये मैडनेस 2, 2.5, 3% से ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर उसको साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास या मेंटल हॉस्पिटल में भेज देना पड़ता है। लेकिन दुनिया में अकल वाला आदमी है, बेस्ट वाइज मैन जो दुनिया के अंदर है, उसके अंदर भी 5%, 0.5% उसके मिजाज के हिसाब से पागलपन है। पागलपन इंसान में शामिल है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे अंदर जो जीन्स और एंजाइम्स हैं, उसके अंदर भले करोड़ों साल हो चुके हैं हमारी उत्पत्ति और हमारी एवोल्यूशन को, हमारे अंदर अभी तक जानवरों की वृत्ति स्वभाव है। आज उसकी डिटेल्स देने का टाइम और फुर्सत नहीं मेरे पास, लेकिन हमारे अंदर ये चीज है। इसका नाम 184 है। 184। हम 184 में से निकले नहीं, हमको उसमें से छुटकारा लेना है। और छूटने का रास्ता हाजर इमाम की बंदगी, इबादत और ताबेदारी है। इस्माइली मजहब 184 में से छुटकारे का रास्ता है और इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं। चिर वाला और उपाय नहीं है शरण को, और कोई दूसरा उपाय नहीं करने के लिए। ये यानी मजहब इस्माइली सत्यपंथ, ये है शरण की बारी। इस्माइली मजहबी एक बारी है करने के लिए, 184 में से छूटने के लिए, और कोई नहीं। क्यों भला, क्यों नहीं? इसलिए कि आज सारी दुनिया के जितने भी मजहब हैं, तमाम मजहबों के अंदर, तमाम सेक्ट और संप्रदाय में से हाजर इमाम का नूर हमारे सिवा और कहीं नहीं, कहीं नहीं। अलबत् हम दूसरे मजहबों को खोटा नहीं कहते,
लेकिन दूसरे मजहबों के अंदर से छुटकारे की बात नहीं। उनको खुदा बख्शिश देगा, उनके गुनाह खुदा मुआफ भी करेगा, लेकिन मुक्ति का मार्ग इस्माइली मजहब के सिवा कोई नहीं। यहूदी मजहब मूसा नबी के जमाने के अंदर बिल्कुल सच्चा था। जब तक मूसा नबी जीते थे, यहूदी लोग मूसा नबी के फरमान पे अमल करते थे, तो वो उस वक्त इस्माइली मजहब में थे। उस वक्त इस्माइली मजहब का नाम, जो मूसा नबी को मानने वाले थे, उनको यहूदी कहो कि कुछ भी कहो, यहूदी नाम बाद में आया। हिस्ट्री के हिसाब से यहूदा जो था उसका ये नाम था, टाइटल था, उस पर से यहूदी नाम पड़ा। लेकिन मूसा नबी जब जीते थे, जो मजहब वो लोगों को सिखाते थे वो ये सतपंथ था जो आज है। ईसा नबी भी जब तक जीते थे जो मजहब सिखाते थे वो मजहब नहीं कि जो सेंट पॉल ने बताया उनको। ईसा नबी की हयाती में जो मजहब ईसा नबी सिखाते थे वो ये इस्माइली मजहब था। तो ये डिफरेंस पता लग सकता है मिशनरी साहब? हाँ, लग सकता है। ये डिफरेंस आपको पता लग सकता है। बाइबल पढ़ो और बाइबल के अंदर जो जो बातें जीसस ने बोली हुई हैं उनको लिख लो और फिर कुरान खोल के उसके साथ टैली कर लो। 99% कुरान के साथ वो बातें मिलती हैं, लेकिन सेंट ल्यूक ने या मैथ्यूस ने या दूसरों ने जो कुछ भी उसके अंदर अपनी तरफ से उमेर दिया है वो कोई बाइबल नहीं, वो तो स्टोरियां बना डाली। जीसस ने जो कुछ कहा वो लिख के कुरान के साथ टैली कर लो। और जो जीसस ने कहा, तो ये चार जो उनके अपोस्टल्स थे, 4 वर्षन है ना बाइबल के, उन चारों में डिफरेंस है, उन चारों में डिफरेंस है। इसके अंदर सबसे अच्छा ये लोग कहते हैं कि मैथ्यूस था, माथी। लेकिन जीसस की हयाती में नबी ईसा जो कुछ भी लोगों को कहते रहे, सिखाते रहे, वो सब इस्माइली मजहब था। नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ भी सिखाते रहे वो सब इस्माइली मजहब था। और आज जो कुछ भी हाजिर इमाम हमको सिखा रहे हैं उसी का नाम इस्माइली मजहब है। हर जमाने के अंदर इमाम के नूर ने जो चीज लोगों को सिखाई वही इस्माइली मजहब था। इसलिए यही रास्ता, यानी उस जमाने के अंदर वो जो इस्माइली मजहब था, आज ये इस्माइली मजहब है। और उपाय नहीं तरण को, ये तरण की बारी। कभी आज 2000 साल पहले की जो दरवाजा खखड़ गया, टूट गया, फट गया, जाम हो गया, खुलता नहीं, बंद हो गया, कचरा आ गया, उसमें से पसार होने की कोशिश करेंगे तो कहाँ जाएंगे? या कपड़े खराब हो जाएंगे या हमारा शरीर कोई जख्मी हो जाएगा। जो सीधा सच्चा खुला हुआ प्लेन रास्ता है उससे आओ ना, वो इस्माइली मजहब है। तो ये 184 में से मुक्ति लेने का यही मार्ग है। इसलिए फिर सदरुद्दीन माँ बाप ने फरमाया, या मौला 184 जीने जो दातार तू है। अब हमको कहते हैं भोरे मने श्रेवो सिरजनहार। भोरे मने यानी साफ दिल से, जिस दिल में वैर विरोध न हो, जिस दिल के अंदर बदी खराबी न हो, जिस दिल के अंदर बुरी नीयत न हो, जिस दिल के अंदर गंदगी न हो, भोला दिल, साफ दिल। साफ दिल से अपने पैदा करने वाले की बंदगी करो। भोरे मने श्रेवो सिरजनहार। जीवड़ा ऐ इंसान जाग, होशियार बन, जाग जीवड़ा, तू जाग, अल्लाह रहा, खुदा के वास्ते जाग। वास्ता देते हैं। जब कोई आदमी को हम एक बात कहते हैं और नहीं मानता तो बात मनवाने के लिए हम वास्ता देते हैं। वास्ता यानी कसम, तेरे को मेरी कसम, तेरे को बाप की कसम, माँ की कसम, तेरे को ये कसम, तेरे को वो कसम, आखिर में तेरे को अल्लाह की कसम, मेरा ये काम कर दे, या तू ऐसा कर या तू ऐसा न कर। हम वास्ता देते हैं। तो फिर सदरुद्दीन यहाँ हमारे सामने वास्ता रखते हैं, अल्लाह रा, खुदा के लिए जागो। खुदा का वास्ता दे दिया, जागो। फिर इस बात की दुआ मांगते हैं कि वो दिन आवे, ए खुदाया तू कर, वो दिन कर, वो काम कर कि वो दिन आवे, ये लोग जागे। भोले मने श्रेवो सिरजनहार, जीवड़ा तू जाग, अल्लाह रहा तू जाग, मेरे अल्लाह तो दिन आवे। ये दुआ है, या मौला वो दिन आवे कि ये लोग जागे, तुम लोग जागो। कि फरमाते कितनी अच्छी दुआ मांगी है। सच्चे साहिब जी की करनी, मीठे अली जी की करनी, हम दिल भावे। सच्चा मौला जो है उसकी जो कुछ भी करनी है और मीठा शब्द डाल के अपना प्रेम जाहिर किया है। जब हम किसी को बहुत प्यार करते हैं तो हम उसको कहते हैं तू चलो मिठो आइए। हम छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के भी कहते हैं
یعنی یہ ایک محبت کی بات ہے. یا مولا تو مجھے بہت پیارا ہے, یہ تیری کرنی ہے, یعنی تیری وجہ سے, تیرے کارن سے, تیری رحمت اور مہربانی سے ہم دل بھاوے کہ تو میرے دل کے اندر پریم پیدا کیا ہے اور تو میرا پیارا ہے. دیکھا گنانوں کے اندر کتنی سمجھ کی چیزیں ہیں. اے جس تو ہمارا یا علی تیرے پاؤں دھاریا تیرے پھرتا دے یا علی جیوڑا نیپنا بھولے منے تریو سرجنہا جیوڑا تو جاگ اللہ را تو جاگ میرے اللہ تو دن آوے جی. یا مولا میرا سر تیرے پاؤں میں پڑا ہے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ میرا سر اللہ کے پاؤں میں ہے اور میرے بال اللہ کے ہاتھ میں ہیں. بال پکڑنا حد سے زیادہ آدھینتا کی نشانی ہے اس آدمی کے لیے جس کے بال پکڑے جاویں. وہ آدھین ہو گیا, بے وس ہو گیا, اس کے وس چلا گیا کہ جس نے بال پکڑے ہیں. رسول پاک کی یہ حدیث ہے کہ میرے بال اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا سر جہاں وہ رکھے گا وہاں پڑا رہے گا. پھر حسن کبیر جن کا گنان بھی ہے اننت اکھاڑے میں. آشا جی تمہیں چھو ماتا تمہیں چھو پیتا ان تمہیں چھو میرا سایا جی. اس قسم کے 3 پارٹ ہیں. نیچے کی کڑیاں جدی جدی ہیں تینوں پارٹوں میں. ہمارو مستق تمہارے ہاتھ ہمارو مستق تمہارے ہاتھ جیانا کو کیا تھا جو انت تو ہی جانے جی. میرا مستق تیرے ہاتھ میں ہے, میرا سر تیرے ہاتھ میں ہے, جہاں رکھے گا وہیں پڑا رہے گا. سر تو ہمارا یالی تیرے پاؤں دھریا, میں تیرے آدھین ہوں. اس کو سجدہ کہتے ہیں. سجدہ کا مطلب اونچا نیچا سر کرنے کا نام سجدہ نہیں. سجدہ کا مطلب آدھین ہونا, سبمٹ. اور شاریرک حساب سے ہماری سبمشن کے لیے ایکسٹریم ایکسپریشن جو ہے تو وہ پروسٹریشن ہے. اسی کو ہم سجدہ کہتے ہیں. سجدہ کا مطلب اپنے آپ کو اس کی تابعداری میں دے دینا. میرا سر یا میرے مولا تیرے پاؤں میں ہے, تیری رحمت سے, تیرے پرسادے بیکاز آف یو, تیرے کارن سے, تیری مہربانی سے, تیری رحمت سے, تیری وجہ سے میرا چھٹکارا ہوگا. جیوڑا نپنا, میں لیلا ہوں, ہرا بھرا ہوں, میں کھاتا پیتا ہوں, تیری بندگی کرتا ہوں, میں جیتا ہوں, میری ہستی ہے, یہ سب کچھ تیری خاطر ہے, تیری خاطر. یا مولا تیرے بغیر میرا کوئی نہیں, تیری خاطر. یا مولا تیرے بغیر میرا کوئی نہیں. اے جی وشو کنواری شاہ تو پرانے گو بالی وشو کنواری شاہ تو پرانے گو بالی جیت کھڑا ہوا شاہ تو انتے جو والی جیت کھڑا ہوا شاہ تو انتے جو والی بھورے منے سرو سرجنہا رجیوڑا تو جاگ اللہ را تو جاگ میرے اللہ تو دن
कुंवारी, ये जो दुनिया है धरती, आज तक जब से धरती बनी है सारी दुनिया का एक ही मालिक राजा कभी कोई हुआ नहीं है। भूतकाल में दुनिया में बहुत बड़े राजे निकले जिनको ये मन में अभिलाषा हुई कि हम सारी दुनिया का राजा बन जावें। चंगेज खां खड़ा हुआ, चंद्रगुप्त खड़ा हुआ, रावण खड़ा हुआ, नमरूद खड़ा हुआ, फिरौन निकला, हमारे जमाने के अंदर हिटलर निकला, नेपोलियन उठा, मगर वो चीज न बन सकी। आज तक सारी दुनिया का एक राजा कोई नहीं हुआ, इसलिए दुनिया यानी धरती विश्व कुंवारी है। मगर हमारे पीरों ने बड़े बड़े कमाल किए हैं। मैंने आपको कहा हमारे गिनानों के अंदर आध्यात्मिक बातें बहुत हैं। विश्व कुंवारी धरती को कहते हैं, और हमारा बदन भी धरती है, हमारा बदन भी विश्व कुंवारी है। और गिनान का तर्जुमा और गिनान की समझूती करनी और समझनी है तो आपको बहुत से दूसरे गिनान पढ़ने चाहिए। आपको एक गिनान का मतलब दूसरे गिनान में से खुलासा मिलेगा। मैं जो कभी ये बोलता हूँ कि ये सारी दुनिया आज तक कुंवारी है, सारी जमीन का एक मालिक आज तक कोई नहीं हुआ, ये बात सच है। और पीरों ने इस तरीके से भी हमको बताया है। और ये बात जो मैं बोलता हूँ कि हमारा शरीर है, ये धरती है, और यही शरीर हमारा विश्व कुंवारी है, तो ये बात भी सच है। मैं अपने मन से कोई चीज आपको नहीं बता रहा, मेरा सारा तर्जुमा समझूती कुरान, हदीस, गिनान, फरमान के ऊपर ही लगा हुआ है। जागो जागो भाईड़ा मुशारन बयानी, इस गिनान के अंदर हेत प्रीत तन दई जिन्हें मन दिया विश्वनार कुंवारियां। इस गिनान में पीर सदर दिन खुलासा करते हैं, हेत प्रीत यानी प्रेम से, मोहब्बत से, तन दे के जिसने अपना मन दिया, यानी तन मन धन सब कुछ हाजर इमाम के पांव में अर्पण कर दिया, तो वो मोमन विश्व नार कुंवारियां, उसके साथ मौला शादी करेगा। यानी ये रूहानी चीज है, उसके आत्मा के साथ, उसके रूह के साथ मौला का मिलाप होगा, वो मौला के नूर में मिल जाएगा, उसको वासल हक का दर्जा मिलेगा, वो आदमी फना फिल्लाह के दर्जे पे पहुंचेगा। वो विश्व नार कुंवारियां हेत प्रीते तन दई जिन्हें मन दिया, ते विश्व नार कुंवारियां। विश्व कुंवारी सातों पढ़ने गो बाली, बाली यानी बाल उम्र में, ये बाली का मतलब कुंवारी नार की तरफ है। औरत की शादी बाल अवस्था में, बाल अवस्था का मतलब 5-7 बरस, ये बाल अवस्था नहीं, 16 बरस बाल अवस्था है। तो ये इशारा किया है कि कुंवारी लड़की, आजकल तो 40 बरस की कुंवारियां भी हैं, मगर उस जमाने के अंदर तो कोई 16-18 साल की उम्र से ज्यादा हो जाती थी तो बाप को, माँ को मरने जैसा होता था। इस उम्र तक तो शादी हो जानी चाहिए। विश्व कुंवारी बाली उम्र के अंदर, यानी जैसी, इसका बाली का इशारा है एक कि एप्रोप्रिएट उम्र में मौला उसके साथ शादी करेगा। यहाँ बाली का मतलब एप्रोप्रिएट, बिल्कुल सूटेबल टाइम, जैसे कि 14, 15, 16, 17 साल, ये एप्रोप्रिएट एज है कुंवारी लड़की की शादी के लिए। विश्व कुंवारी ये दुनिया की तरफ भी इशारा है। कभी रूहानियत में ले लो तो जैसा आपने सदर दिन फरमाया, ये बदन जब उसका एप्रोप्रिएट टाइम आएगा, यानी मौत या वो रूहानी दर्जा जो उसने इबादत में पाया है, तो मौला उसके साथ अपना नूरानी मिलाप करेगा। जिस खड़ा हुआ शातू अनते जो वाली, वाली कहते हैं प्रोटेक्टर, वाली कहते हैं रखवाले को, वाली मालिक को कहते हैं, राजा को भी वाली कहते हैं। ये शब्द निकला वली में से, वली दोस्त को कहते हैं, और वाली उसको कहते हैं कि जो दोस्त का ध्यान रखे। दो दोस्तों में जरूर छोटाई बड़ाई होती है, इक्वालिटी कभी कभी होती है, लेकिन दोनों में या अकल में या पैसे में या उम्र में या ओहदे में या एक्सपीरियंस में कुछ न कुछ ऊंच नीच होती। तो जो बड़ा होता वो वाली होता है। अनंत है जो वाली, हिसाब बिगर, जीवों का प्रोटेक्टर, मालिक, उनकी रखवाली करने वाला, ध्यान रखने वाला, या मौला तू है, तू ही। ए जी भाने पीर सादर दिन
या अली हम गुनेगार घणे पीर सदर दिन या अली हम गुनेगार गुना बख्शो हमारा या अली बख्शनहार गुना बख्शो हमारा या अली बख्शनहार भोले मने त्रेवो सिरजनहार जीवड़ा तू जाग अल्लाह तू जाग मेरे अल्लाह तो दिन आवे जी मिठे साहिब जीनी करनी सच्चे अली जी की करनी हम दिल भावे जीवड़ा तू जाग अल्लाह तू जाग मेरे अल्लाह तो दिन आवे जी। फिर सदर दिन फरमाते हैं या मौला मैं गुनहगार हूँ, मेरे गुनाह बख्श मुआफ कर। हमको पीरों से लेसन सीखना चाहिए। पीर तो पाक है, पीर पवित्र है, पीर ने कोई गुनाह किया नहीं, खुद मौला ने उसके लिए सनद दी है। हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि पीर सदर दिन तुम्हारे जैसा आदमी था, यानी नजर में दिखने में इंसान थे, लेकिन तुम्हारे और पीर सदर दिन में यह फर्क है कि पीर सदर दिन ने सारी जिंदगी कोई गुनाह नहीं किया। ये सनद दी है इमाम ने। और सब पीर जितने भी पुठियों के पीर हैं वो तो नूर है। हमारी बंदगी, हमारी इबादत, हमारी करनी पीर की मारिफत इमाम तक जाती है। हमारी बख्शश भी पीर की तुफैल से है, पीर के कारण से। पीर हमारे लिए सिफारिश करेगा, रेकमेंड करेगा मौला को, हमारी तरफ से आजिज़ी करेगा, प्रे करेगा या मौला तेरे गुनहगार बंदे हैं तू छोड़ दे, मुआफ कर दे। तो पीर तो गुनहगार नहीं, फिर भी हमको सिखाने के लिए कि देखो मैं भी इमाम के पाँव में सिर रख के मैं कहता हूँ या मौला मैं गुनहगार हूँ, मेरा गुनाह मुआफ करो। तो हमको तो लंबे पड़ जाना चाहिए मौला के पाँव में, दंडवत करनी चाहिए। अपनी पेशानी को मौला के पाँव की जो खाक है उसके साथ मलो। रसूलुल्लाह की आदत थी कि नमाज के बाद जहाँ सजदा करते हैं तो नबी साहब उधर की धूड़ लेके अपने मुंह पर फिराते थे। ये नबी साहब की आदत थी। मैंने आपको जो कहा कि सच्चा असल इस्लाम हमारे पास है तो मैंने झूठ नहीं बोला। हमारे मजहब की रीत रस्म रिवाज सब वही है जो रसूलुल्लाह करते थे। मुसलमान भाइयों के साथ जाके नमाज पढ़ो, वो लोगों को पता भी नहीं है ये चीज का। हालांकि किताबों में है, किताबें वो छापते हैं, वो पढ़ते भी होंगे शायद, अरबी में, फारसी में, उर्दू में, इंग्लिश में ये किताबें मिलती हैं। इंग्लिश में कदाचित इतनी किताबें नहीं मिलेंगी, लेकिन फारसी, अरबी, उर्दू में ये सब किताबें हैं। फिर भी मुसलमान भाई नमाज पढ़ने के बाद हमारी तरह वो खाक अपने मुंह पे नहीं मलते जो हम करते हैं। हम रसूलुल्लाह की पैरवी करते हैं। आपको मालूम है जब हम दुआ पढ़ लेते हैं तो हम 3 दफा अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह व अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन अलीउल्लाह, हम 3 दफा ऐसा कलमा पढ़ के हम क्या करते हैं? ऐसा कोई आदमी तो यूं ही करते हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं। ये हथेली वहां रखो जहां सजदा किया है जमीन के, और ऐसा उधर की धूड़ उठा के अपने मुंह पे मलो। ये रसूल किया करते थे। और यही बात पीर सदर दिन ने फरमाई, मेरा सिर तेरे पांव में है, यानी हमारा मुंह तेरे पांव की खाक में पड़ा है। मतलब यह है कि हम तेरे सामने खाक की तरह, धूड़ की तरह तेरे अधीन है। या मौला तेरे सामने हमारी वैल्यू धूड़ जैसी भी नहीं, हम धूड़ है तेरे पांव की। अपने आप को इतना नीचे गिराना, अपने आप को इतना हम्बल बनाओ, इतना ह्यूमिलिएट करो मौला के सामने कि पीर सदर दिन जैसा बुजुर्ग कि जिसने सारी जिंदगी कोई गुनाह नहीं किया। पीर सदर दिन माँ बाप पाक पवित्र थे, फिर भी वो कहते हैं या मौला मैं गुनहगार हूँ। इसी के साथ आवे, रुदन करते आवे, आजिज़ी करते रहे, विनती करते रहे, या मौला मैं कुछ नहीं, या मेरे मौला
تو ہی سب کچھ ہے. اس طرح اپنے دل کے اندر اپنے گنہگاری کا خیال کر کے اپنا سر مولا کے پاؤں میں رکھو. مولا کے پاؤں کی دھول اٹھا کے جہاں سجدہ کیا اپنے منہ کے اوپر ملو تو یہ منہ کو روشنی ملے گی, نور چمکے گا. مولا کے گھر کی یہ آدمی تھا. انشاءاللہ مولا سب کی نیک امید پوری کرے. سکھی آباد رہو. مولا ایمان کی سلامتی دے رہے, حقیقتی سمجھ دے رہے, بدیوں برائیوں گناہوں نافرمانیوں سے بچاوے, اپنا فرمان بردار مومن بناوے, دستن سپریت میں پورا رکھے, نیک اعمال کی توفیق دے رہے, دنیا میں اپنی پناہ چھتر چھایا میں رکھے. ہمارے سر مولا کے پاؤں میں ہمیشہ پڑے رہے. مولا ہم کو اپنا عابد غلام عابد خادم بنا کے رکھے. دین میں دنیا میں ہماری ہاتھ پکڑے, ہماری پناہ بنے اور اپنی دامن میں ہمیشہ رکھے. جان میں, مال میں, آل اولاد میں برکت دے رہے. آبرو, عزت, روزی, کمانی, تندرستی, اولاد میں برکت دے رہے. ایمان کی سلامتی دے رہے, ایمان میں وڈھارا کرے. مولا زہر باطن نصیب کرے.